اگر ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ تو اتنا سونا ہے کہ مجھے تم نے یوں کر کے کانا پیدا نہیں کیا، مجھے دونوں سے محروم کر کے اندھا پیدا نہیں کیا، مجھے کانوں کی سماعت عطا کر کے تم نے مجھے بہرا پیدا نہیں کیا، مجھے شعور کی نعمت عطا کر کے تم نے مجھے پاگل اب نارمل پیدا نہیں کیا، تم نے مجھے زبان عطا کر کے گونگا پیدا نہیں کیا، تم نے ہمیں حرکت والے ہاتھ دے کے ہمیں تم نے کسی کا محتاج نہیں بنایا، ایک ٹانگ نہ دے کے لنگڑا نہیں بنایا، دونوں سے محروم کر کے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، ہمیں صحت عطا کر کے نعمت عظمی عطا فرمائی۔ تم نے اس تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اور جو احسان عظیم ہے تیرا کہ تم نے ہمیں سارا کچھ عطا کر کے مسلمانوں کے گھر پیدا کر کے ہماری زبان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی درود پڑھنے والی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی زبان عطا کی، یعنی ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ بھی اس کا خیال ہے۔ اور کوئی غلطی سے مشرک ہی اس کو اللہ کہہ دے تو آگے سے وہ 3 بار کہتا ہے جی میرا بندہ۔ کتنا سونا ہے یہ، وہ دیکھتے ہی نہیں ہے، اس کے منہ سے اس کو پتا ہے کہ یہ مشرک ہے لیکن اس نے مجھے پکارا ہے، تو وہ اس کی بھی صدا کو سنتا ہے۔ ہمیں جو اس کا خیال آتا ہے ہماری گندگی کے باوجود، گناہوں کے باوجود، غلط خیالات کے باوجود، اچھا نہ سوچنے کے باوجود، اللہ کا احساس نہ کرنے کے باوجود، اللہ کا خوف نہ رکھنے کے باوجود، پھر جب ہمیں اس کا خیال آتا ہے کہ اب تو سارے رستے بند ہیں، تو پھر خیال ایک ہی ذات کا آتا ہے، اور وہ خیال کیا ہے؟ میرے اللہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم ہے وہ ذات جو لائق حمد و ثنا ہے، کریم ہے وہ ذات جس کے محبوب رحمت للعالمین ہیں، اور ان کی اولاد پاک، ان کی نسل پاک بھی کتنی محبوب ترین ہے میرے پاک کریم اللہ جی کو۔ آپ سے میں اکثر و بیشتر کسی نہ کسی موضوع کو موضوع بحث بنا کے حاضر خدمت ہوتا رہتا ہوں۔ آج بس بیٹھے بیٹھے یوں خیال آیا، خیال بھی اپنا نہیں ہوتا، خیال بھی کسی کا دیا ہوتا ہے۔ جب خیال کسی کا دیا ہو اور پھر اسی کے خیال میں رہے تو پھر اپنے ہم خیال کا وہ خیال بھی رکھتا ہے۔ وہ ہم خیال سے مراد کیا ہے؟ یہ دنیاوی بات ہے کہ اگر آپ اپنے ہم خیال کے خیال میں گم ہو جائیں تو آپ کا ہم خیال آپ کے خیال میں گم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا خیال اللہ جی ہو جائے اور اللہ جی کا خیال اتنا مضبوط ہو جائے، تھوڑا بہت بھی ہو جائے، تو اس کا خیال پھر ہمیشہ یہ خیال دلاتا ہے کہ اس کی بات کر جو تیرا خیال رکھتا ہے۔ خیال رکھتا کون ہے؟ اللہ۔ ویسے بندہ بھی بندے کا خیال رکھتا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ بندہ بندے کا خیال اتنا نہیں رکھتا جتنا اس کو رکھنا چاہیے۔ بندے سے آپ کی ناراضگی ہوگی، وہ آپ کا خیال نہیں رکھے گا، وہ آپ کا ہم خیال بھی نہیں رہے گا۔ اگر بندے نے آپ سے کوئی غلطی کر دی یا آپ نے کوئی بندے سے غلطی کر دی تو پھر جو بندہ ہے وہ آپ کا ہم خیال کسی صورت میں نہیں رہے گا۔ آپ بندے پہ نیکی کر لیں، بندے پہ احسانات کر لیں، بندے کے ساتھ جو مرضی کر لیں، لیکن جب وہ ناراض ہو گیا تو اس کے دل میں نہ آپ کا خیال رہے گا نہ آپ کے دل میں اس کا خیال رہے گا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں جب ناراض ہوتا ہے نا تو وہ جس سے ناراض ہوتا ہے یا جو جس سے ناراض ہوتا ہے تو پھر ان کے ذہن کے اندر اس کے ساتھ جتنا حسین ترین ٹائم گزرا ہوا ہو، دوست کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، وہ پھر خیال جو ہے اس کے لیے نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اس کا مطلب یہ ہے
कि जो इसका ख्याल हम रख के ये समझते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, मैं इसका बड़ा ख्याल रखता हूँ, कभी मुश्किल आएगी तो ये मेरा ख्याल रखेगा। लेकिन आप यकीन जानिए कि आप जितना मर्जी ख्याल किसी का रख लें, रखना चाहिए। अच्छे खून की ये सिफत है और अच्छे माँ बाप के तरबियत याफ्ता औलाद की ये सिफत है कि हमेशा वो जिनसे रिलेशन या ताल्लुक़ बन जाए उसका ख्याल रखते हैं। लेकिन आप जितनी भी कोशिश कर लें, अगर कहीं भी खराश आ गई, गलती हो गई, उस ताल्लुक़ में खराश आई, तो वो जिसका आप ख्याल रख रहे हैं वो आपके लिए कोई अच्छा ख्याल नहीं रखेगा, उसका गुमान कभी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर क्यों ना हम उसके ख्याल में रहें जो हमारा ख्याल रखता है। अगर हम उसका ख्याल ना रखें तो वो हमारा फिर भी ख्याल रखता है। हम उसका एहसास ना करें, वो हमारा फिर भी एहसास करता है। हम उसको भूल भी जाएं तो वो हमको कभी भूलता नहीं है। हम भूल भी जाएं, उसका ख्याल न भी रखें, उसका एहसास दिल में न रहे, तो वो फिर भी हमारी उसकी बारगाह में कुछ अर्ज़ करने से, को उसकी बारगाह में कुछ मांगने से वो कभी ये नहीं कहेगा कि तूने मेरा ख्याल छोड़ दिया, तूने मेरा एहसास छोड़ दिया, तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। नहीं, ये बंदा कर सकता है लेकिन खालिक नहीं करता। ये खालिक क्योंकि हसीन है, खूबसूरत है, उसकी सिफ्त है अपनी मखलूक का एहसास करना, अपनी मखलूक का ख्याल रखना। तो हम क्यों नहीं ये ख्याल कभी करते कि हमने दुनिया के रिश्तों के कितने ख्याल रखते भी हैं। एक बहन है ना, मैं एक मिसाल अर्ज करने लगा हूँ, उसकी अगर बेटी जवान हो जाती है, आपका बेटा जवान हो जाता है, आपके दिल में ख्याल पैदा होता है कि मैं अपने बहन से अपने बेटे का रिश्ता लेने जाऊं, और अगर वो किसी वजह से इनकार कर देती है तो आपके दिल में जो उसका ख्याल रहता है, मोहब्बत का, एहसास का, हमदर्दी का, वो यकसर ख़त्म हो जाता है। क्यों? कि वो आपके तवक्को पे आपकी सच्ची बहन जो अपने माँ और आपके जो आज जिसका माँ और बाप एक है, आपकी वो सच्ची बहन है, उसने सिर्फ एक माजूरी का इजहार किया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपको नहीं दे सकती, तो हमने उसका ख्याल फिर छोड़ दिया ना। हमारे अंदर तो फिर उसका ख्याल कब रहा, रिश्ते कब रहे? रिश्ते भी टूट गए, वो खून का एहसास भी नहीं रहा, ये भी ख्याल नहीं रहा कि वो भी उसी माँ से पैदा हुई है, उसका भी बाप वही है जो मेरा है। लेकिन हम भूल जाते हैं मेरा करीम अल्लाह और आपका हसीन अल्लाह, मोहम्मद अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खूबसूरत अल्लाह, वो आपका इतना ख्याल रखता है। अगर आप उसका नहीं रखते तब भी रखता है, हम उसका एहसास नहीं करते तब भी वो हमारा एहसास करता है। हम जितनी गलतियां कर लें वो हमें माफ़ भी करता है, वो हमारी डिमांड को भी पूरा करता है, हमें रिज़्क भी देता है, हर चीज़ तो उसकी अता करता है। कितना ख्याल रखता है। हम अगर जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि मुझे बैठे बैठे ख्याल आया, ख्याल किसका आया? ज़ात का? नहीं, ख्याल उस ज़ात का आया जो ज़ात मेरा ख्याल रखती है, लेकिन मैं उस ज़ात का कभी ख्याल नहीं रखता। मैं तो मतलब के साथ उसके ख्याल में जाता हूँ ना। मेरे सर में दर्द हुआ, मेरे पेट में अल्लाह ना करे दर्द हुआ, मुझे कोई माली मसाइल आ गए, मुझे कोई घरेलू परेशानी आ गई, मुझे कोई दुनियावी परेशानी आ गई, मेरी ज़िंदगी में अगर अल्लाह करीम मुझसे कोई इम्तिहान ले रहे हैं तो फिर मैं तो अल्लाह के ख्याल में गुम हो जाता हूँ। उसका मतलब है ये मैं मतलबी आदमी हूँ ना, मैं अपने मतलब के मातहत उसके ख्याल में गुम हो जाता हूँ, उससे राब्ता रख लेता हूँ। तो कभी उसने ये कहा कि आज तुम्हें गर्ज पड़ी तो तुम्हें मेरा ख्याल आया? नहीं, वो कभी नहीं ये कहते। अल्लाह जी ये नहीं कहते। अल्लाह जी फिर हमारे ख्याल का ख्याल रखते हैं,
हमें जो उसका ख्याल आता है, हमारी गंदगी के बावजूद, गुनाहों के बावजूद, गलत ख्यालात के बावजूद, अच्छा न सोचने के बावजूद, अल्लाह का एहसास न करने के बावजूद, अल्लाह का खौफ न रखने के बावजूद, फिर जब हमें उसका ख्याल आता है कि अब तो सारे रास्ते बंद हैं, तो फिर ख्याल एक ही ज़ात का आता है, और वो ख्याल क्या है? मेरे अल्लाह का, कि इसके ज़ात के अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो मेरा ख्याल रखे। तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप जितना उसकी तरफ अपना ख्याल करेंगे, वो आपका इतना ख्याल करेगा जो हमारे ख्याल न रखने के बावजूद हमारा ख्याल रखता है। हम उसका ख्याल नहीं रखते तो फिर हमारा ख्याल, अगर हम ख्याल उसकी तरफ कर लें, हमारा ख्याल ये हो कि हम उसकी नेमतों का एहसास करें, ये भी ख्याल है। हमें उसके अंदर उसका खौफ हमारे अंदर लम्हे भर के लिए पै जाए, ये भी उसका ख्याल है। वो हमें हर चीज़ से नवाजता है। देखें, आप और मैं, दुनिया का जितना बड़ा बंदा हो, बड़ी शख्सियत हो, कदावर शख्सियत हो, चौधरी हो, MNA हो, मिनिस्टर हो, हम उसका जितना ख्याल रखेंगे ना, वो हमारा ख्याल नहीं रखेगा, क्योंकि वो इंसान है। जी हजूरी, खुशामद करेंगे, उसके लिए कुछ करेंगे तो वो आपका ख्याल रखेगा ना। उसको क्या ज़रूरत है आपका ख्याल रखने की? देखें, जिसकी अल्लाह जी की सिर्फ हम तारीफ़ कर दें, उस हसीन ज़ात की खाली तारीफ़ कर रहे हैं, और ये भी ख्याल है। अगर हम ये ख्याल कर रहे हैं कि तू इतना सोना है कि मुझे तुमने यूं करके काना पैदा नहीं किया, मुझे दोनों से महरूम करके अंधा पैदा नहीं किया, मुझे कानों की समात अता करके तुमने मुझे बहरा पैदा नहीं किया, मुझे शऊर की नेमत अता करके तुमने मुझे पागल एबनॉर्मल पैदा नहीं किया, तुमने मुझे ज़बान अता करके गूंगा पैदा नहीं किया, तुमने हमें हरकत वाले हाथ दे के हमें तुमने किसी का मोहताज नहीं बनाया, एक टांग न दे के लंगड़ा नहीं बनाया, दोनों से महरूम करके हमें किसी का मोहताज नहीं बनाया, तुमने हमें सेहत अता करके नेमत उज़्मा अता फरमाई, तुमने उस तमाम नेमतों से बड़ी नेमत और जो एहसान अजीम है तेरा, कि तुमने हमें सारा कुछ अता करके मुसलमानों के घर पैदा करके हमारी ज़बान को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दरूद पढ़ने वाली और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली ज़बान अता की। यानी हमें मुसलमानों में पैदा किया, मुसलमानों के घर में पैदा किया, ये भी उसका ख्याल है। हम उसका ख्याल करें, यकीन करें, वो हमारा इतना ख्याल करेगा जिसका आपको एहसास नहीं है, मुझे एहसास नहीं है। और कोई गलती से मुशरक ही उसको अल्लाह कह दे तो आगे से वो 3 बार कहता है जी मेरा बंदा कितना सोना है यार। वो देखते ही नहीं है, उसके मुंह से उसको पता है कि ये मुशरक है, लेकिन उसने मुझे पुकारा है तो वो उसकी भी सदा को सुनता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये मुख्तसर सी जो गुफ्तगू मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, आपको ये शायद पसंद आएगी। और ख्याल जो उसका अता मुझे बैठे बैठे हुआ, इस ख्याल में हम कोशिश किया करे रहे कि हमें उसका ख्याल आए, उसका ख्याल, उसका एहसास, उसकी याद। यकीन करें वो लम्हात हमारी ज़िंदगी का वो कीमती तरीन असासा बन जाएंगे जिसको आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसका अजर हमें रोज़े महशर में और इस दुनिया में अल्लाह अता फरमाएंगे। मेरी दुआ है कि हम अल्लाह के ख्याल में गुम रहें और अल्लाह का एहसास हमारे दिल में मौजूद रहे, हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो ये मंशा बुखारी यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट्स के अंदर अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। मेरा कोई जुमला गलत हो तो उसमें मेरी इस्लाह फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया।